وہ سفید اور لال رنگ کے فراک پہنے، سر پہ لال دوپٹہ لیے آئینے کے سامنے بے سود بیٹھی تھی۔ سنگار کی ساری چیزیں ڈریسنگ پر رکھی تھی لیکن اس نے استعمال نہیں کی تھی۔ وہ سادگی میں بھی اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ مولوی صاحب آ گئے تھے۔ آ جائیں آپ۔ بوا کمرے میں آتی اسے اپنے ساتھ لیے نیچے پڑ گئی اور وہ بھی کسی بے جان وجود کی طرح ان کے ساتھ چلتی۔ شاوی نے سیڑھیاں اترتی اس لڑکی کو دیکھا جو ہمیشہ باہمت رہتی تھی، جس کی آنکھیں کبھی نہیں جھکی تھی لیکن وہ آنکھیں جھکائی ہوئی تھی۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر شاوی کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ بس آج کی بات ہے، بعد میں اسے اتنی خوشیاں دے گا کہ وہ سامان نہیں پائے گی۔ بوا نے اسے شاوی کے سامنے والے صوفے پر بٹھایا اور خود وہیں برابر میں کھڑی ہو گئی۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، شاوی نے کہا۔ میں یہ نکاح جب تک نہیں کروں گی جب تک میری بہن اور کزن یہاں نہیں آ جاتے۔ مولوی صاحب کے بولنے سے پہلے حیات نظریں جھکائے ہی بولی، وہ بھی آ جائیں گے، پہلے نکاح ہو جائے۔ شاوی نے نرمی سے کہا، میں آپ سے نکاح کرنے سے انکار نہیں کری، بس مجھے وہ دونوں یہاں چاہیے۔ حیات نے اس سارے وقت میں پہلی بار نظریں اٹھائے سختی سے کہا۔ شاوی نے ناکوں میں سٹ بند دیکھتا حامی بھر گیا اور اپنے بندوں کو لانے بھیجا۔ حیات آپی، روحان اور کومل اس کی طرف بڑھے لیکن روحان کو شاویر کے آدمی نے پکڑ لیا جبکہ کومل کو جانے دیا۔ کومل تم ٹھیک تو ہو نا؟ کومل حیات کے گلے لگی تو حیات نے نم آواز میں پوچھا، چھوڑو مجھے حیات، تم ٹھیک ہو نا؟ روحان نے خود کو چھڑواتے ہوئے چیخا تو حیات نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپی یہ لوگ کون ہیں اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ کومل حیات کے ساتھ چپکی ہوئی ڈر سے پوچھنے لگی۔ تم ڈرو نہیں کومل، سب ٹھیک ہے، حیات نے اسے اپنے ساتھ لگاتے تسلی دی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ نکاح زبردستی ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب سب دیکھتے ہوئے حیات سے پوچھنے لگے تو روحان اور کومل نے چونک کے حیات کی طرف دیکھا جو آنسو پہ باندھی کھڑی تھی، جبکہ شاوی نے سب دیکھتے جب سے مٹھیاں بیجی اور سر کو نفی میں ہلاتے حیات کو نہ کرنے کا اشارہ دیا اور ساتھ ساتھ روحان کی طرف دیکھنے کا بھی اشارہ کیا۔ حیات نے جب روحان کی طرف دیکھا تو ایک آدمی اس کی کمر پر گن رکھے کھڑا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ آج کسی طرح نہیں بچ سکتی۔ اسے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ مولوی صاحب سن لیا آپ نے؟ اب نکاح شروع کرے۔ شاویر نے مسکرا کر کہا۔ حیات تم یہ نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ روحان چیخا تو حیات نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی۔ وہ جانتی تھی روحان کے لیے یہ وقت کسی اذیت سے کم نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی خود کے لیے محبت کو جانتی تھی۔ ہاں حیات اس سے کبھی محبت نہیں کی تھی، وہ صرف اسے اپنا کزن اور دوست مانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے درد کو سمجھ رہی تھی، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آپ یہ سب کیا ہے؟ آپ ان سے نکاح کیوں کر رہی ہیں؟ کومل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کومل تمہیں اور روحان کو بچانے کا یہی ایک راستہ ہے، وہ کومل کو اپنے ساتھ بٹھاتی آہستہ سے بولی۔ حیات ناصر آپ کا نکاح شاویر کاشان سے 25 لاکھ حق مہر طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز کانوں میں پڑتے حیات نے آنسو سے بھیگی آنکھیں اٹھاتے ہوئے روحان کو دیکھا جو مسلسل نفی میں سر ہلاتا اسے انکار کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا، تکلیف، درد، وہ زیادہ تر ان آنکھوں میں دیکھ نہ سکی۔ پھر اس نے کن نظریں کومل پہ کی جس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ کومل کو دیکھتے حیات کے کب سے زکی آنسو اڑیوں کی طرح گال پر بہنا شروع ہو گئے۔ قبول ہے، اس نے شاویر کو دیکھتا جو اسے دیکھ رہا تھا، پھر بے دردی سے آنسو صاف کرتے کہا کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، اس نے شاویر سے نظریں اٹھائے بغیر کہا کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ نہیں حیات ایسا مت کرو، روحان نے نم آواز میں کہا، لیکن جب وہ فیصلہ کر چکی تھی تو پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ قبول ہے، اس نے آخری بار بھی شاویر کو دیکھتے کہا اور جب سے دستخط کرتے اپنی زندگی کی ڈور اس ستمگر کے نام کر دی۔ روحان تو جیسے ساکت ہو گیا تھا، وہ کتنا خوش تھا اس کی محبت کچھ دن بعد اس کی ہم سفر بن جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت ایسا پلٹا کھائے گی کہ وہ اپنی ہی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتا دیکھے گا اور کچھ کر بھی نہیں پائے گا۔ مولوی صاحب نے شاویر سے پوچھا تو اس نے خوشی خوشی حیات کو اپنے نکاح میں لیا۔ مولوی صاحب اس کے ایک کلیگ جو گواہ کے طور پر آئے تھے اسے مبارکباد دیتے چلے گئے۔ تو میں نے ان کے گھر چھوڑا اور باعزت کسی تکلیف کے بغیر۔ شاویر نے کھڑے ہوتے اپنے آدمی کو روحان کو لے جانے کا کہا تو وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے روحان کو لے گئے جو کسی بے جان وجود کی طرح ان کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا۔ حیات نے افسوس سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا، اذیت، تکلیف، غم، شاید اب ان آنکھوں میں یہی رہنا تھا۔ چلو حیات میں تم دونوں کو ابھی گھر چھوڑ دیتا ہوں، بعد میں بہت جلد بارات لے کر آؤں گا، اس نے مسکرا کر کہا ہے تو حیات نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ خوشی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ کے گھر والے یہاں نہیں آ جاتے۔ وہ یہاں آئیں گے اور دیکھیں گے ان کے بیٹے نے کیا گل کھلایا ہے۔
हयात ने डरी हुई कोमल को देखते सख्त लहजे में शामिर से कहा, वो लोग भी आ जाएंगे। पहले मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ वरना टाइम ज़्यादा हो जाएगा। शामिर ने समझाना चाहा। लगता है आपको मेरी बात समझ नहीं आई। इसने शामिर को घूरते अपनी बात पर जोर दिया। लेकिन इन्हें आने में वक्त लग जाएगा। इसने फिर कोशिश की। चलो कोमल। हयात उठ के कोमल को साथ लिए इसी कमरे में चल दी जहाँ इसे रखा था, जिसका मतलब साफ था वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। उफ सीधी लड़की। वो मुस्कुराकर बड़बड़ाता वहीं सोफे पर बैठ गया। कोई है हवेली में? हवेली वाले कहाँ हो? सबका जो झूठा चश्मों चिराग आया है। वो हवेली में दाखिल होता सबको आवाज़ें लगाने लगा। अफाम लाला। उजाला जो नीचे जा रही थी, जो इसकी आवाज़ सुनते दरवाजे की तरफ देखा। अपने भाई को खड़ा दौड़ के इस तक पहुंची। लाला आप तो एक माह बाद आने वाले थे। वो उसी गले लगे खुशी से बोली। मैंने सोचा सबको सरप्राइज़ दिया जाए। अफाम ने प्यार से इसका माथा चूमते कहा, अफाम मेरा बेटा। रज़िया बेगम किचन से निकलती अपने बेटे की तरफ बढ़ी। कैसी हैं आप अम्मी? इसने माँ को गले लगाया। इतने सालों बाद अपने बेटे को गले लगा के मेरी सारी थकन उतर गई। उन्होंने रोते हुए इसका माथा चूमा। अम्मी रोए नहीं और ये बताएं बाकी सब कहाँ हैं? अफ़ाम माँ के आंसू पोंछता बहन और माँ को बाजू के हल्के में लिए अंदर आया। कौन आया है बहू? दादी जान कमरे से निकलती हुई बोली। आपका छोटा पोता आया है विलायत से। वो शरारत से कहता दादी जान के पास गया और उनके गले लगा। हाय मेरा बच्चा कैसा है? इतना दुबला हो गया। वो उसके साथ आती सोफे पे बैठी। बस दादी वहाँ कोई ठीक से खाना खिलाने वाला नहीं था ना। इसने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा। बहू अब मेरे बच्चे को खूब खिलाना पिलाना। दादी जान ने प्यार से सर पे हाथ करते कहा। हाँ और खिला पिला के हाथी बनाना। उजाला ने संजीदगी से कहा जिसे कोई सीरियस बात हो बोली हो। तुम तो चुप ही रहो छोटी मोटी। अफाम ने चिढ़ाया। लाला मैं मोटी नहीं हूँ। उजाला ने एहतजाज किया तो सब हंस दिए। अम्मी अभिया नजर नहीं आ रही? अफान ने यहाँ वहाँ देखते पूछा। इसकी बेचैन नजरें कब से अभिया को ढूंढ रही थी। हाँ बेटा इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए सो रही है और बाकी सब काम पर गए हुए हैं। रज़िया बेगम ने बताया। अभी अफाम कुछ कहता जरा रज़िया बेगम के बजते फ़ोन ने सबकी मुतवज्जो अपनी तरफ की। रज़िया बेगम ने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया। हेलो शाविर बेटा, तुम्हें पता है अम्मी पहले आप मेरी बात सुने। शाविर ने उनकी बात करते अपनी बात कही। हाँ बोलो, उन्होंने पूछा। अम्मी आपको अभी यहाँ शहर आना होगा। शाविर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। इसे थोड़ी सी फिक्र थी कि ये सब जानने के बाद कि इसने निकाह कर लिया और जब पता चलेगा किस तरह से किया तो उनका क्या रद्द अमल होगा। शावी सब ठीक है ना? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा तो आपस में बात करते दादी उजाला फार्म भी इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। जी अम्मी आप परेशान ना हो, बस दादी को लेकर यहाँ आ जाए। मगर हुआ क्या है जो तुम ऐसे अचानक बुला रहे हो? वो परेशान हुई। आप लोग यहाँ आएंगे फिर तफसील से बताऊंगा। अम्मी प्लीज़ अभी प्लीज़ यहाँ आने के लिए निकले। इसने कहते फ़ोन बंद कर दिया। अम्मा शाविर ने हमें अभी वहाँ बुलाया है। रज़िया बेगम को समझना है कि ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें इसी तरह जल्दी में वहाँ बुला रहा है, क्योंकि आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। अगर वो किसी परेशानी में भी होता था तो वो कभी भी ऐसे घर पे किसी को नहीं बताता था। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या था जिसने बुलाया था। अगर बच्चे ने बुलाया तो ज़रूर फ़िक्र की बात होगी। तुम एक काम करो, कशान को फ़ोन करके बुलाओ फिर हम इसके साथ चलते हैं। दादी भी फ़िक्रमंद हुई। अम्मी आप बाबा को रहने दें, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। इनको ज़रूर आपसे कोई काम होगा वरना वो सीधा बाबा को फ़ोन करते आपको करने की बजाय। अफ़ाम ने समझदारी से कहा। फिर भी कोई बड़ा साथ तो होना चाहिए ना। रज़िया बेगम काफ़ी घबरा गई थी। बहू बच्चा ठीक कह रहा है, अगर कोई बड़ी बात होती तो वो हमें नहीं कहता। इसलिए मुझे भी यही लगता है कि कशान को परेशान करने के बजाय हम चलते हैं। दादी जान के कहने पर वो समझते हुए हाँ में सारी रात ही उठ गई। अम्मी मैं भी साथ जाऊंगी। उजाला भी खड़ी हुई। नहीं बेटा तुम यहीं रहो, अबिया के पास इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। रज़िया बेगम कहती अपने कमरे में चादर लेने चली गई। मैं गाड़ी निकालता हूँ, अफ़ाम कहता बाहर चल दिया। थोड़ी देर बाद अफ़ाम, रज़िया बेगम और दादी शहर के लिए रवाना हो गए। अरे रूहान आ गए। शमीम बेगम ने दरवाज़ा खोला तो रूहान अंदर दाखिल हुआ। कोमल और हयात कहाँ है रूहान? इन दोनों को ना पाके शमीम बेगम ने पूछा, लेकिन वो खामोश रहा। रूहान बोलो कहाँ हैं वो दोनों? शमीम बेगम ने इसे झंझोड़ा। खाला सब ख़त्म हो गया। रूहान की हालत काफ़ी ख़राब थी। बाल माथे पे बिखरे हुए थे, लहजा थका हुआ था, आंखें लाल हो रही थी। क्या कह रहे रूहान? क्या हुआ मेरे बच्चे को? कहाँ है वो? किसी अनहोनी के तहत चीखी। इनकी आवाज़ सुनते अंदर बैठे नासिर साहब और निदा बेगम, रूहान की वालदा भी बाहर आई। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? नासिर साहब ने सख्ती से पूछा। रूहान मेरे बच्चे को साथ नहीं लाया और आप बता भी नहीं रहा कि वो कहाँ है। वो फिक्र व परेशानी से बोली। पहले अंदर चलो फिर बात करते हैं। नासिर साहब भी परेशान हुए लेकिन रूहान की हालत देखते अंदर ले गए।
روحان بیٹا کہاں ہے حیات اور کومل؟ ندا بیگم نے بھی تشویقی انداز سے پوچھا۔ امی سب ختم ہو گیا، میری محبت میری آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہو گئی اور میں کچھ نہیں کر سکا، روحان نے نم لہجے میں کہتے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو روحان؟ کیا ہوا ہے پوری بات بتاؤ، ناصر صاحب نے غصے سے کہا۔ تو روحان نے انہیں پوری بات بتائی۔ سب حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ناصر صاحب نے بہت مشکل سے خود پہ ضبط کیا تھا۔ یا اللہ میری بچی پہ کس مصیبت میں پھنس گئی۔ شمیم بیگم نے روتے ہوئے اپنا سر تھاما تو ندا بیگم بھی پریشانی سے اٹھتی ان کے پاس آئے۔ کون ہے وہ جس سے حیات کا نکاح ہوا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ بتاؤ، ہم ابھی پولیس کے پاس جاتے ہیں۔ ناصر صاحب ہمت سے کام لیتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کون تھا وہ، میں تو یہ بھی نہیں جانتا جس جگہ وہ ہمیں لے کے گیا تھا وہ کہاں ہے، روحان نے افسردگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، پولیس سب پتہ لگوا لے گی، ناصر صاحب کہتے جانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نہیں خالو، ہمیں تھوڑی دیر بعد انتظار کرنا چاہیے، مجھے لگتا ہے وہ جلدی انہیں لے کر آ جائے گا، روحان نے بتایا۔ تو کیا جب تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے، مجھے یقین ہے پولیس بھی اس کے ساتھ ہی ملی ہوگی۔ روحان کے کہنے پہ ناصر صاحب صبر کے گھونٹ بڑھتے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر پہلے جس گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی سب خوشی سے جھوم رہے تھے، اب اسی گھر میں ایک دم سوگواری چھا گئی تھی۔ بوا کھانا بھیجا آپ نے اوپر؟ شابر وہیں صوفے میں بیٹھا اپنے گھر والے کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بوا کو وہاں تھا دیکھ کر پوچھا۔ جی میں نے دیا تھا لیکن انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے سر جھکا کے کہا آپ مجھے دیں میں لے کے جاتا ہوں، شابر نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ تھوڑی دیر بعد بوا سے کھانے کی ٹرے دے گئے جسے لیے وہ اوپر بڑھا، دروازے پہ دستک دیتا اندر داخل ہوا تو دونوں بہنیں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حیات نے ایک نظر اسے دیکھتے کومل کو اپنے ساتھ لگایا جو شاور کو دیکھتے ڈر سے اس کے اندر ہی چھپکی جا رہی تھی۔ شاور کو دکھ ہوا اس چھوٹی لڑکی کو خود سے ڈرتا دیکھ کے، وہ آ کے برتن کے سامنے میز رکھتا کھانا رکھتا وہاں رکھ کے سنگا صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کھانا کیوں واپس بھیج دیا تم نے؟ شاور نے حیات کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھوک نہیں تھی، اس نے رکھائی سے کہا۔ تمہیں نہیں ہے لیکن اس چھوٹی سی گڑیا کو تو ہوگی نا، شاور نے کومل کی طرف دیکھتے پیار سے کہا۔ اسے بھی نہیں ہے، اسے گھورتے ہوئے بولی۔ میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں مجبور تھا، وہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا لیکن ابھی یہ وقت ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کی ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آپ نے اس طرح سے نکاح کیا؟ وہ سرد لہری سے بولا۔ وہ بھی بتا دوں گا بہت جلد، لیکن پہلے کھانا کھا لو، اس چھوٹی گڑیا کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ اس نے مسکرا کر کومل کو دیکھا اور اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپ ہی میں کھا لوں؟ 18 سال کی کومل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں کھا لو، حیات نے مسکرا کر کہتے اسے اجازت دی۔ جو ہوا تھا اس میں کومل کا کوئی قصور نہیں تھا، پھر وہ کیوں اسے کھانا کھانے سے روکتی، جبکہ وہ جانتی تھی کھانا سامنے ہے تو کومل کو بھوک لگ ہی جاتی ہے۔ دروازے کے باہر کھڑے شاور کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی اور وہ اس کے ہر شکوے ہر شکایت دور کرنے کا عزم لیتا نیچے چل دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لوگ شوہر پہنچے تھے۔ آ گئے آپ؟ شاور جو لانچ میں ہی بیٹھا تھا انہیں اندر آتا دیکھا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں ہمیں اتنی جلدی میں بلایا ہے؟ دادی جان صوفے پہ بیٹھی۔ امی آپ ہی بیٹھے پھر بتاتا ہوں، شاور ماں کو ساتھ لیے بیٹھا۔ لالا سب ٹھیک تو ہے نا؟ افام نے اندر آتے فکر مندی سے پوچھا۔ افام تم واپس کب آئے؟ شاور اٹھ کے اس سے گلے ملا۔ آپ کا فون آنے سے کچھ دیر پہلے آیا تھا، لیکن آپ یہ سب باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں ہوا کیا ہے جو اتنی ایمرجنسی میں بلایا ہے؟ ہاں وہ بات یہ میں بتاتی ہوں، ابھی شاور نے بات شروع کی تھی، جب نیچے آتی حیات اس کی بات کاٹتی بولی تو سب نے آواز کے تعاقب میں دیکھا، اسے جیسے سب کی آوازیں آنا شروع ہوئی تھی وہ نیچے آ گئی تھی۔ حیات کے پیچھے پیچھے کومل بھی خاموشی سے اس کے ساتھ آتی انجان نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ حیات کو دیکھتے ہی دادی جان اور رضیہ بیگم دنگ رہ گئی تھی، جبکہ عفان پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ہے کون۔ حیات تم یہاں؟ رضیہ بیگم کھڑی تھی بولی۔ آپ وہ چاہتے تھے نا کہ میں آپ کی بہو بنوں تو دیکھیے بن گئی، آپ کے بیٹے نے آپ کی خواہش پوری کر دی، حیات ان کے مقابل آتی طنزیہ مسکرا کر بولی۔ شاور یہ کیا بول رہی ہے؟ دادی جان نے خاموش کھڑے اپنے پوتے سے پوچھا، جبکہ حیات کی بات سنتے ہی وہاں موجود تینوں لوگ شاکڈ ہو گئے تھے۔ دادی جان یہ سچ ہے کہ میں نے حیات سے نکاح کر لیا ہے؟ شاور گہرا سانس بھرتا بولا۔ اور یہ بھی پوچھیں کیسے کیا ہے؟ وہ شاور کو دیکھتی سرد لہجے میں بولی۔ میں سب بتاتا ہوں، اور شاور سب بتاتا چلا گیا، جبکہ دادی کے چہرے پہ غصہ صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ شاور یہ کیا حرکت کی تم نے؟ تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے کسی کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ دادی غصے سے دھاڑی، ایک پل کو تو دادی کا ایسا رخ دیکھتے حیات بھی ڈر گئی۔ میں مانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا لیکن میری نیت بالکل صاف ہے،
शामी ने नरम आवाज़ में कहा तो रज़िया बेगम रफ़ी में सर हिलाती हयात की तरफ मुतवज्जा हुई। हयात बेटा मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने हाथ जोड़े। नहीं आंटी आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हयात ने जल्दी से उनके हाथ थामते नीचे किए। नहीं बेटा इसमें मेरी गलती है। मैं ही शायद शाविर की सही तरबियत नहीं कर पाई। इनका लहजा नम हुआ। शाविर को दुख हुआ अपनी माँ की बात सुनते। आंटी मुझे पूरा यकीन है कि आपने तो तरबियत बहुत अच्छी की होगी, लेकिन जब औलाद बड़ी होके खुद मुख्तार हो जाए तो अपनी तरबियत अपने हिसाब से खुद कर लेती है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो बहुत मान से बोले तो वहाँ मौजूद सभी इसकी सोच पर मुस्कुरा दिए, जबकि शामिल मुस्कुरा भी न सका। हयात बेटा तुम फिक्र नहीं करो, हम खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाके तुम्हारे वालिदैन से बात करेंगे। दादी जान इसका हाथ अपने हाथ में लेती बोली, जी दादी इसलिए मैंने आप लोगों को बुलवाया था, क्योंकि अगर मैं किसी अजनबी के शख्स के साथ घर जाती तो मेरे बाबा और मेरी इज्जत पर बात आ जाती। अब आप सब भी होंगे तो साथ तो हमारी इज्जत महफूज रहेगी। इसके लहजे ने एक पल के लिए शाविर को शर्मिंदा कर दिया था। ठीक है अफाम तुम इन्हें लेकर हयात के घर पहुंचो, मैं शाविर के साथ आ रही हूँ। दादी जान के कहने पे अफाम हाँ में सर हिलाता इन्हें लिए बाहर बढ़ गया। दादी जान मैं हयात से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसे किसी और का होते नहीं दे सकता, इसलिए मैंने ये सब किया। सबकी जाती शाविर दादी के कदमों में बैठा। शाविर मोहब्बत को हासिल करने का ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की इज्जत को खतरे में डाल दो। दादी ने गुस्से से कहा, मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, लेकिन आप देखिएगा मैं इसकी इज्जत पर कभी कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। इसकी इज्जत अब से मेरी इज्जत है। शाविर ने यकीन दिलाया। चलो हमें देर हो रही है। दादी इसकी बात को नज़रअंदाज करते उठ के बाहर चल दी तो वो भी ठंडी सांस भरता इनके पीछे हो लिया। कौन? आयशा आमना के पूछने पर इससे अपना नाम बताया। आमना दरवाज़ा खोलती अंदर चली गई तो वो भी इसकी नाराज़गी पे मुस्कुराता दरवाज़ा बंद करता अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अम्मा कैसी हैं? वो लॉन्च में बैठी ज़ैनब बेगम को सलाम करता इनके पास ही बैठ गया। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? उन्होंने उसके कंधे पे हाथ फेरते शफक से पूछा। ठीक हूँ, बस ज़्यादा काम की वजह से मसरूफ़ रहने लगा हूँ, इसने मुस्कुरा कर कहा। पानी रुको ये लेती जाओ। आमना के पानी रखकर जाने से पहले वो बोल उठा, क्या है ये? वो संजीदगी से बोली, तुम्हारे लिए गिफ्ट और अपने साथ लाया शॉपिंग बैग। इसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अजनबियों को गिफ्ट नहीं देते। एक मिनट के लिए तो आमना का दिल चाहा सब नाराज़गी भुला के गिफ्ट ले ले, लेकिन फिर अपने दिल पे काबू करती खफी से बोल के चली गई। आयशा इसका इशारा ना पहचानने वाली बात की तरफ समझता मुस्कुराया। इसे क्या हुआ है? क्या बोल रही थी? अम्मा ने नासमझी से पूछा। कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़ी सी नाराज़ है मुझसे, मैं मना के आया। वो मुस्कुराता हुआ आमना के पीछे चल दिया। मैं तो समझा गिफ्ट देके तुम मान जाओगी। आइस डाइनिंग टेबल पर बर्तन रखती आमना को देखता है गिफ्ट का बैग इसके सामने रखते कुर्सी खिसका कर बैठ गया। आप कौन है? वो ऐसे बोली जैसे जानती ही नहीं है। यार आई एम सो सॉरी, मैं मसरूफ़ था इसलिए पहचान नहीं सका। इसने फिर माजरत की, लेकिन आमना कोई भी रिस्पॉन्स दिए बगैर अपने काम में लगी रही, जैसे वहाँ इसके अलावा कोई और हो ही नहीं। यार प्लीज़ मान जाओ, देखो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। आज ने मासूमियत से कान पकड़े। आमना ने किड आँखों से देखा जो कान पकड़े इसे ही देख रहा था। वो भूरी आंखों वाला पुरकशिश नैन नक्श वाला शहजादा इस तरह कान पकड़े बहुत क्यूट लग रहा था। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। ठीक है आपका सॉरी एक्सेप्ट कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो याद रखिएगा मैं एक गिफ्ट पर नहीं मानूंगी। फिर वो गिफ्ट उठाती इसे खोलते हुए बोली, कोई बात नहीं मैं तुम्हें 4 गिफ्ट दे कर मना लूँगा। आयश मज़े से बोला, मतलब आप फिर से मुझे पहचानेंगे नहीं? तो ठीक है रखें अपना गिफ्ट अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। वो गुस्से से बैग से निकाला हुआ बॉक्स वापस रखती वहाँ से जाने लगी। जब जल्दी से खड़े होते आयुष ने इसका रास्ता रोका। मजाक कर रहा था यार, तुम तो सीरियस ही हो गई। आमना ने इसे देखा जिसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। ठीक है लेकिन दोबारा ऐसा मजाक नहीं करेगा, वरना इसने उंगली दिखाते धमकी दी। अच्छा बाबा अब नहीं करूँगा। अब खाना भी खिलाओगी या नहीं? ज़रूर खिलाऊंगी, आमना ने खुशी से कहा। ठीक है मैं अम्मा को लाता हूँ जब तक तुम खाना लगाओ। आयुष कहता ज़ैनब बेगम को लेने चला गया तो वो भी ओके कहती किचन की तरफ बढ़ गई। मेरी बच्ची आ गई, डोर बेल की आवाज़ पे शमी बेगम ने बेचैनी से कहा, क्योंकि अब वक्त बहुत गुजर गया था। हयात और कोमल को घर से बाहर मैं देखता हूँ नासिर साहब कहते दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने हयात और कोमल खड़ी थी। बाबा। वो दोनों अंदर आते नासिर साहब के गले लगी। नासिर साहब ने भी किसी कस के दोनों को अपने साथ लगाया, जैसे डर हो के कहीं फिर कोई इन्हें ना ले जाए। ठीक तो हो ना तुम दोनों? उन्होंने बारी बारी दोनों के माथे पर बूसे देते पूछा तो दोनों ने इस बात में सर हिलाया। आइए आप लोग, हयात ने इन्हें बाहर खड़ा देकर अंदर आने का कहा।
ये लोग कौन है बेटा? नासिर साहब ने हयात से पूछा। अंदर चल के बात करते हैं बाबा। वो सबको लिए अंदर आई। हयात, कोमल, ठीक तो हो ना तुम दोनों? शमी बेगम ने तड़प कर इन्हें गले से लगाया। जी मम्मा, हम बिल्कुल ठीक है, हयात ने इनके आंसू पोंछते कहा। आप लोग सब बैठे। हयात, ये सब क्या हो रहा है? कौन था वो जिसने तुमसे निकाह किया है? कहाँ है वो? और ये लोग कौन है? शमी बेगम ने बेचैनी से पूछा। निदा बेगम, रोहान और नासिर साहब की सवालिया नज़रें भी हयात की तरफ ही थी। मैंने किया है हयात से निकाह। शाबिर दादी का हाथ पकड़ते हुए अंदर लाते बोला। सब ने इसकी तरफ देखा। खालू, यही है वो शख्स जिसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी है। मैं इसे जान से मार डालूंगा। रूहान बेकाबू होता शावे की तरफ बढ़ता इसका गिरबान पकड़ गया। रूहान, छोड़ो से। नासिर साहब अफाम हयात ने इसे शाविर से दूर किया, जबकि शाविर खामोशी से खड़ा था। वो रूहान की हालत समझ रहा था। इसकी मोहब्बत इससे छीन ली गई थी, और मोहब्बत अगर कोई छीन ले तो कितनी तकलीफ़ होती है, ये वो जानता था। इसके साथ भी यही हुआ था। इससे डरता हयात इससे छिन जाएगी, तभी इसने कदम उठाते हयात को हमेशा के लिए हासिल कर लिया। रोहान, होश से काम लो। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी से ज़बरदस्ती निकाह करने की? रोहान को पीछे करते नासिर साहब को सिर से धाड़े तो सबको सांप सूख गया। क्योंकि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, इनके बरक्स याविर ने नरमी से कहा। झूठ। नासिर साहब फिर से धाड़े। पापा बैठ जाए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हयात ने आगे बढ़ते इनके कंधे पे हाथ रखते हुए बिठाया। दादी, आंटी, आप बैठ जाए, हयात ने कहा तो वो ना चाहते हुए बैठ गई, जबकि अफाम वही साइड में खामोश खड़ा था। भाई साहब, हम बहुत शर्मिंदा अपने बेटे की हरकत पर। दादी जान शर्मिंदगी से कहा। आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है जो आपके बेटे ने ख़राब करने की कोशिश की है। इसने इस तरह हमारी बेटी से निकाह कर लिया है, ये सोचे बगैर कि 10 दिन बाद इसकी शादी है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां चल रही हैं। कार्ड छप गए, लोगों को पता है इस घर में शादी होने वाली है। अब हम क्या जवाब देंगे सबको? नाज़िर साहब की आवाज़ धीमी लेकिन लहजा सख्त था। अंकल, कार्ड छपे हैं, बटे नहीं, इसलिए लोगों को कुछ कुछ पता नहीं चलेगा दूल्हा कौन था और अब कौन है। शावी ने सुकून से कहा, जैसे पहले से ही सोचा हो कि अब क्या होगा और उसे क्या कहना है। नहीं, हयात की शादी तुमसे कभी नहीं होगी, तुम अभी हयात को तलाक दोगे। रूहान ने दरदस्तगी से कहा। इसकी बात सुनते शाविर की आंखों में खून उतर आ। दिल क्या किया सामने खड़े लड़के का खून कर दे। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, इसने जब से मुठियाँ भींचते कहा। तुम्हें ऐसा करना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम कोर्ट के ज़रिए खुला लेंगे। रूहान इसे घूरते हुए बोला। रूहान, तुम ये क्या बोल रहे हो? शाविर को अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। वो अभी गुस्से में कुछ करता कि हयात की आवाज़ पे रुक गया। तलाक का सुनते सांस तो दादी जान और रज़िया बेगम की भी रुक गई थी, लेकिन हयात के कहते थोड़ा सांस बहाल हुआ। तो क्या तुम सारी ज़िंदगी इस शख्स के साथ गुजारोगी? रूहान चीखा। तुम होते कौन हो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने वाले? मैं मानती हूँ जिस हालात में मेरा निकाह हो रहा था, इस वक्त मैं राज़ी नहीं थी, लेकिन अब मेरा निकाह हो चुका है, और मैं अब इस निकाह को तमाम ज़िंदगी निभाऊंगी। कभी भी वो काम नहीं करूँगी जो अल्लाह का सख्त नापसंदीदा काम है। मैं कभी तलाक नहीं लूँगी। हयात की बातें शाविर के गुस्से को भंग से उड़ा गई, और चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई थी। मगर हयात, बस बहुत हुआ रूहान। मैं हयात की बात से इत्तेफाक करता हूँ। कोई भी बाप नहीं चाहेगा कि की बेटी को तलाक हो, चाहे निकाह जैसे भी हुआ हो तो गया ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के माथे पे तलाक का धब्बा लगे, इसलिए अब जो होगा हो गया, इसमें राज़ी हो जाओ। नासिर साहब रूहान की बात काटते ठहरे हुए लहजे में बोले। इन्हें हयात की बात कहीं न कहीं सही लगी थी, इसलिए थोड़े ठंडे होते हुए बोले थे। बेटा, आपने ठीक कहा, जो हुआ अब हमें इसे कबूल कर लेना चाहिए, और अब फ़िक्र नहीं करें, जिस तारीख को शादी है इसी तारीख को होगी। हम इसी दिन बारात लाएंगे और अपनी बेटी को इज्जत से रुखसत करवा के ले जाएंगे। अगर आपको अब भी कोई एतराज़ है तो बोलो। बेटा, आपको कोई एतराज़ है? दादी जान ने शमीम बेगम को खामोश बैठा देखकर पूछा। शमीम बेगम ने एक नज़र नासिर साहब को देखा, जो आंखों से तसल्ली का इशारा दे रहे थे। अब एतराज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए हमें आपकी बात मंजूर है। शमीम बेगम ने बेतासुरात चेहरे से कहा, लेकिन इनकी बात में छुपा तंज वो अच्छी तरह समझ गई थी। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? अम्मी, आप कुछ तो बोले। रोहान ने अपनी माँ को मुखातिब किया, जो खामोश थी। बेटा, यहाँ जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। हयात का निकाह हो चुका है, तलाक एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए अब तुम अपने आप को समझा लो। मीता बेगम ने समझाया समझाया जो समझना है नहीं चाहता था। अम्मी, आप ही? वो गम गुस्से से कहता कमरे से बाहर ही निकल गया। निदा, हमें माँ नहीं फहमी, ये तो नसीब में लिखा था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और तुम परेशान नहीं हो, मैं रूहान को समझा दूंगी, वो जल्द समझ जाएगा। निदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा।
अच्छा बेटा अब हम चलते हैं और आज से ठीक 10 दिन बाद तुम्हारे दरवाजे पे बारात लेकर आएंगे। दादी जान ने इजाज़त चाही। अंकल जो कुछ हुआ मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप यकीन रखें मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। वो शख्स जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं था, किसी से माफ़ी नहीं मांगता था, आज अपनी मोहब्बत के लिए सबसे माफ़ी मांग रहा था। नासिर साहब ने जवाबन इसका कंधा थपथपाया, लेकिन बोले कुछ नहीं। दादी जान और रज़िया बेगम हयात को प्यार करती बाहर निकल गई। आ गए आप लोग, सब खैरियत तो है ना? उजाला ने बताया बताया कि शावी ने इमरजेंसी में बुलाया है। वो लोग रात में हवेली में पहुंचे थे। जब सब हॉल में बैठे चाय पी रहे थे, इन्हें अंदर आता देखा दादा जान ने पूछा, अपने पोते से पूछ लें। दादी जान कहती बैठ गई। अरे अफाम तुम कब आए? दादा जान ने अफाम को पीछे पीछे आते देख कर पूछा। दोपहर में आया था और आते साथ ही ये लोग मुझे अपना ड्राइवर बनाकर ले गए। वो दादा जान के गले लगकर शरारत से बोला, ये तो अच्छा है, अब तुम आ गए हो तो हम एक ड्राइवर की छुट्टी कर देंगे। आयल भी मज़े से कहता इसके गले लगा, क्या लाला आप भी शुरू हो गए? वो खफी से कहता अपने बाबा की तरह बड़ा। इनसे मिलते यासिर साहब से मिला और वहीं बैठ गया। कैसी हो अबिया? अफ़ाम ने सामने बैठी चाय पीती अबिया से पूछा। मैं ठीक हूँ लाला, आप कैसे हैं? इसने मुस्कुराकर बताते इसका हाल भी पूछा, जबकि अफ़ाम सख्त मज़ा हुआ था इसके लाला कहने से। मैं एकदम फिट फाट हूँ और अपने डोले शोले दिखाता शौक़ी से बोला, अब अगर तुम सबसे मिल लिए हो तो क्या हमें कोई बताएगा कि आज हुआ क्या है? क्यों आपको शाविर ने शहर बुलाया था? दादाजान ने अफ़ाम को देखते हुए कहा, आपके पोते ने आपकी बहू ढूंढी और जनाब ने इनसे निकाह भी कर लिया है। दादी जान के कहने पे चाय पीते तकरीबन सबको अच्छू लगा। ये आप क्या बोल रही हैं अम्मा? किसके लिए भी किसी के लिए भी इस बात पे यकीन करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था कि घर का सबसे समझदार बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा ऐसा कर सकता है। पूछ लो बैठा हुआ है। दादी ने पुरसुकून से बैठे शावे की तरफ इशारा किया तो सबकी सवालिया निगाहों की इसकी तरफ हुई। मैं बताता हूँ, अफ़ाम मज़े से कहता सबको बताने लगा जैसे कोई मज़ेदार कहानी हो। शावी ये क्या कह रहा है? तुमने इस बच्ची को मजबूर करके निकाह किया? पूरी बात सुनते दादा जान गिरजे, जबकि अबियार ज़्यादा तो खुश हो गई थी, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकी। मैंने मजबूर नहीं किया था, मैंने तो बोला था जाना है तो जाओ, लेकिन वही रुक गई अपने कज़न और बहन के लिए। इससे कंधे कर ऐसे कहा जैसे गलती इसकी थी कि वो गई क्यों नहीं जब इसने बोला था तो। अच्छा अब छोड़ें इसे, जो होना था हो गया, अब तुम सब शादी की तैयारी करो। 17 तारीख को बारात लेके जाना है। दादी जान ने दादा से कहते सबको कहा तो सब ने बात समझते हाँ में सर हिलाया। थैंक यू भाई हयात को हमारी भाभी बनाने के लिए। उजाला शावेर के पास आती इसके गले लगती खुशी से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। अब तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। वो एक्साइटेड होती इसे अपनी तैयारी के बारे में बताने लगी, जबकि सब इसकी खुशी देखते मुस्कुरा दिए। ख्वाहिश तो सबकी थी कि हयात को बहू बनाने की, लेकिन इस तरह सब होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। और इसी को किस्मत कहते हैं कि जो कोई नहीं सोचता वो हो जाता है।